Good morning everyone. Students, today we will start chapter 8 division. So let's start. Now we will do exercise 25. So your question is divide using the repeated subtraction method. आपको ये question दे रखा है, आपको divide करना है repeated subtraction method से. Now I will explain you how to divide repeated using repeated subtraction method. कैसे करते हैं divide. So firstly 9 divided by 3. 9 को 3 से divide करना है repeated subtraction method में. So we will subtract 3 from 9. So student 9 minus 3 6. Again we will subtract 3 from 6. 6 minus 3 3. Again we will subtract 3. 3 minus 3 0. So 1 1 2 3 कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ ये 3 टाइम्स में. हैंस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 आंसर. नाउ 7 इज 16 divided by 4. So 16 divided by 4 here. We will divide 4 from 16. Sorry, we will subtract 4 from 16. 6 minus 4 2 1. Again subtract 4. 12 minus 4 8. Again we will subtract 4 from 8. 8 minus 4 4. We will subtract 4 from 4. 4 minus 4 0. 1 2 3 4. कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है ये 4 टाइम्स में. Hence 16 divided by 4 is equal to 4 आंसर. ओके स्टूडेंट्स, में कुछ नहीं करना होता है. जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है हम उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं. उस नंबर को हम जब तक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जब तक हमारा लास्ट में ज़ीरो नहीं आ जाता. फिर हम देखते हैं कितने टाइम्स में सब्ट्रैक्ट करने के बाद ज़ीरो आया. इसमें यहाँ पर कितने टाइम्स किया 1 2 3 4. सो हम आंसर लिख देते हैं 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4. ओके स्टूडेंट्स, now question number 10 is 20 divided by 5. So we will subtract 5 from 20. So student 20 minus 5 15. Again we will subtract 5. So 15 minus 5 10. Now again subtract 5. 10 minus 5 5. फिर से हम 5 subtract करेंगे. 5 minus 5 0. How many times 1 2 3 4. So hence 20 divided by 5 is equal to 4 answer. Okay students, now 24 divided by 8. So here we will subtract 8 from 24. So 24 minus 8 4 borrow कर लेंगे. 4 becomes 14 and 2 becomes 1. 14 minus 8 6. It is 1. Now again we will subtract 8 from 16. 16 minus 8 8. Again subtract 8. 8 minus 8 0. कितने टाइम्स में हो रहा है ये 1 2 3. Hence 24 divided by 8 is equal to 3. Then 40 divided by 10. So here we will subtract 10 from 40. 10 40 minus 10 30. Again subtract 10. 30 minus 10 20. Again subtract 10. 20 minus 10 10 and 10 minus 10 0. 1 2 3 4. 4 times subtract करके 0 आ रहा. So hence 40 divided by 10 is equal to 4. Now we will do exercise 26. So your question is write two division facts. So your question is write two division facts for each of the following multiplication facts. आपको multiplication fact दे रखे हैं, इनके 2 division facts करने हैं. So firstly we will divide 18 by 3. So first division fact is 18 divided by 3 is equal to 6 and second division fact is 18 divided by 6 is equal to 3. हम इस वाले नंबर को एक बार इस नंबर से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आंसर आता है. जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है. यही हमारे आंसर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज 4 into 5 is equal to 20. So your first division fact is 20 divided by 4 is equal to 5. So student, your second division fact is 20 divided by 5 is equal to 4. Now question number 3 is 7 into 4 is equal to 28. So firstly we will divide 28 by 7. So your first division fact is 28 divided by 7 is equal to 4 and second is 28 divided by 4 is equal to 7. So student, ये सारे ही questions ऐसे ही हो जाएंगे. Your next question is write the multiplication facts of
ऑफ द फॉलोइंग डिवीज़न फैक्ट्स। अब कह रहे हैं ये जो आपको डिवीज़न फैक्ट्स दे रखे हैं इनके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखिए। सो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे लिखते हैं, लाइक 24 डिवाइडेड बाय 6 है इज इक्वल टू 4 है। सो 6 वी नो दैट 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 एंड 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24. सो योर फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इज 6 into 4 is equal to 24 and 4 into 6 is equal to 24. Question number 18 is 21 divided by 3 is equal to 7. So first is we can write 3 into 7 is equal to 21 and it is written as 7 into 3 is equal to 21. Question number 19 is 27 divided by 3 is equal to 9. So it can be written as 3 into 9 is equal to 27 and 9 into 3 is equal to 27. So ये सारे सेम ऐसे ही होने हैं. So students, now we will start exercise 28. So your question number 1 is find the question when 21 divided by 3. कह रहे हैं 21 को 3 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालना है. So student क्वेश्चन क्या होता है, आंसर ऑब्टेन ऑन डिवीज़न इज़ कॉल्ड द क्वेश्चन. वो नंबर जब आप डिवाइड करते हैं जो आपका आंसर आता है वो आपका क्वेश्चन कहलाता है. अ नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड. वो नंबर जो आपका डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड कहलाता है. एंड अ नंबर बाय विच डिवाइड इज़ कॉल्ड द डिवाइज़र. वो नंबर जिससे आप डिवाइड करते हैं वो आपका डिवाइज़र कहलाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमें 21 को 3 से डिवाइड करना है. तो 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है, यस 3 7 1. 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में आता है. 3 7 21. सो जो ये वाला आपका नंबर होता है ये होता है आपका क्वेश्चन, बिकॉज ये आपका आंसर है. जो आपका आंसर आता है डिवाइड करने पे वो आपका क्वेश्चन कहलाता है. सो योर क्वेश्चन इज 7. Now question number 2 is 24 divided by 4. So now divide this. 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 24, 4 6 24, 4 6 24. ओके स्टूडेंट. तो नाउ योर क्वेश्चन इज 6 आंसर. Now question number 3 is 42 divided by 6. So here 6 के टेबल में हम देखेंगे 42 कितने टाइम में आता है. 6 7 42, 6 7 42. माइनस करेंगे 0 आ जाएगा. तो योर क्वेश्चन इज 7 आंसर. नाउ 36 डिवाइडेड बाय 9. हमें 36 को 9 से डिवाइड करना है. सो 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36. यस 9 4 36. ओके स्टूडेंट. सो योर क्वेश्चन इज 4 आंसर. समझ में आ गया. Now we will do word problem. So your question number 17 is a man gives 12 bananas to 4 monkeys equally. How many bananas does each monkey get? कह रहे हैं एक मैन 4 monkeys को 12 bananas देता है, तो हर एक मंकी को ईच मंकी को कितने बनानास मिलेंगे. सो स्टूडेंट हमने आपको बताया है जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जब आपकी कुछ भी ज़्यादा चीज़ दे रखी होती है और ईच का निकालना होता है, मीन्स 1 का कुछ भी निकालना होता है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम हमारी डिवीज़न की होती है, मीन्स डिवाइड की होती है. सो हेयर फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ बनानाज. हाउ मैनी बनानाज, 12. देन वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ मंकीज़. मंकीज़ कितने हैं, 4. वी हैव टू फाइंड आउट द bananas does each monkey get. So here we will write so number of bananas with each monkey. each monkey का निकालने के लिए we will divide 20 by 4. हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे. इस जब हमारा टोटल नंबर ऑफ़ बनानास को हम टोटल नंबर ऑफ़ मंकीज़ से डिवाइड कर देंगे. सो हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे. 4 3 12. कितना आंसर आया यहाँ पर, 3. Hence each monkey gets 3 bananas. Now question number 19 is I have 25 books. I can keep 5 books in one shelf. How many shelves do I need in my almirah? कह रहे हैं मेरे पास 25 बुक्स हैं, मैं 1 शेल्फ में 5 बुक्स रख सकती हूँ, तो मेरे अलमीरा में
कितने शेल्फ की नीड है। सो फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 25। देन वी विल राइट नंबर ऑफ बुक्स कीप्ड इन वन शेल्फ। वन शेल्फ में कितनी बुक आ रही है 5। तो हमें नंबर ऑफ शेल्फ निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बुक को नंबर ऑफ बुक्स कीप्ड इन वन शेल्फ से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 25 डिवाइडेड बाय 5, हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 5। हैंस 5 shelves are required to keep 25 books in the almirah. Now question number 20 is Pinky has 28 toys. She put them equally in 7 boxes. How many toys are there in each box? कह रहे हैं पिंकी के पास 28 टॉयज़ थे, वो उन सारे टॉयज़ को 7 बॉक्सेस में इक्वली रख देती है। सो हर एक बॉक्स में मीन्स ईच बॉक्स में कितने टॉयज़ आएंगे। ईच बॉक्स का निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़ को टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस से डिवाइड कर देंगे। सो फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़। हेयर टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़ इज़ 28। देन वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस। टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस इज इक्वल टू 7। नाउ नंबर ऑफ़ टॉयज़ इन ईच बॉक्स। ईच बॉक्स का निकालने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ़ टॉयज़ को टोटल नंबर ऑफ़ बॉक्सेस से डिवाइड कर देंगे। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 28। योर आंसर इज़ 4। हैंस 4 टॉयज़ आर देयर इन ईच बॉक्स। Now question number 21 is a tailor has 56 buttons. He puts 8 buttons on one shirt. How many shirts can he make with these buttons? एक टेलर के पास 56 बटन्स हैं, वो ये वन शर्ट में 8 बटन्स लगाता है। तो इन सारे 56 बटन से वो कितनी शर्ट्स बना लेगा। सो फर्स्टली वी विल राइट टोटल नंबर ऑफ़ बटन्स। टोटल नंबर ऑफ़ बटन्स इज़ 56। देन वी विल राइट बटन्स पुट ऑन वन शर्ट। वन शर्ट में कितने बटन्स हैं 8। हमें टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकालने के लिए वी विल डिवाइड 56 बाय 8। 56 डिवाइडेड बाय 8। नाउ 8 7 ज़ा 56। योर आंसर इज़ 7। हैंस 7 शर्ट्स कैन ही मेड विथ 56 बटन्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबके। Now we will do exercise 29. So your question is divide and find the question. 36 डिवाइडेड बाय 3। अभी तक हम लोग सिंगल डिजिट की डिवाइड कर रहे थे, बट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट्स दे रखी हैं। 3 के टेबल में 36 डायरेक्टली नहीं आता है। सो फर्स्टली डिवाइड 10 बाय 3। हम 10 डिजिट को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 1 ज़ा 3। Now subtract these 3 minus 3 0 and bring down 6 ones. Okay, now divide 10 ones digits. So 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में जाता है 2 टाइम्स में। सो नाउ राइट 2 इन द 10th digit. Okay, 3 2 ज़ा 6. So 6 minus 6 0. So your question is 12. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने 10th वाले डिजिट्स को डिवाइड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और जो 1s वाली डिजिट होती है उसको हम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं एरो लगाकर। फिर हम 1s वाले डिजिट को डिवाइड करते हैं। जब हमारे लास्ट में 0 आ जाता है तो हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 64 डिवाइडेड बाई 2। सो फर्स्टली डिवाइड 6 10s बाई 2। सो 6 10s बाई 2। सो 2 3 ज़ा 6. Now 6 minus 6 0. Bring down 4 ones. Now divide 4 ones by 2. So 2 2s are 4. Now 4 minus 4 0. So your question is 32. Your question number 11 is 363 divided by 3. So firstly divide 3 ones by 3. So 3 ones are 3. Now subtract these. 3 minus 3 0. Bring down 6 tens. Sorry, firstly we will divide 3 hundreds by 3. हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं ना। So 3 ones are 3. Now bring down 6 tens. Now divide 6 tens. So 3 2s are 6. Now 6 minus 6 0. Bring down
3 ones. Now divide 3 ones. So 3 ones are 3. So 3 minus 3, 0. So your question is 121. स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब हमारे हंड्रेड्स डिजिट दे रखी होती हैं, अगर ये हमारी यहाँ से डिवाइड हो सकती है, सो फर्स्ट सबसे पहले हम हंड्रेड्स वाले डिजिट को डिवाइड करते हैं, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और टेंस वाले डिजिट को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम टेंस वाले डिजिट को डिवाइड करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वंस वाले डिजिट को यहाँ पर एरो लगाकर नोट डाउन कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम वंस वाले डिजिट को डिवाइड करते हैं, फिर अपना आंसर हम लिख लेते हैं। ओके, नाउ we will do exercise 30. So your question number 1 is 57 divided by 3. So here firstly we will divide 5 tens. हम 5 tens को डिवाइड करेंगे, so we can write 3 ones are 3. हम ऐसा नंबर ले लेते हैं, या तो हमारा इस जो टेंस वाले डिजिट है उससे छोटा नंबर आए या फिर सेम वही नंबर आए डिवाइड करने पर, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। अगर हम 3 2 6 लेते तो वो ग्रेटर हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर 3 1 3 लिया। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 5 minus 3 2 एंड देन राइट 7 tens, सॉरी 7 ones। हम ये 7 ones लिख लेंगे। नाउ डिवाइड 27 by 3. सो 3 9s are 27. 27 minus 27, 0. So your question is 19. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जब इस टाइप से दे रखा होता है, जो टेंस वाली डिजिट होती है हमारे इसके टेबल में नहीं आ रही होती है, सो हम ऐसे लेते हैं, या तो इससे कम आए या फिर इसके इक्वल आए, इसके ग्रेटर नहीं आना चाहिए। सो हम 3 1 3 ले लेंगे, 3 2 6 लेते तो वो ग्रेटर हो जाता, तो वो रॉन्ग होता। ओके स्टूडेंट, फिर हम इसको माइनस कर देते हैं और वंस वाले डिजिट को सेम नोट डाउन करके हम दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज 60 डिवाइडेड बाय 4. सो फर्स्टली वी विल डिवाइड 6 tens. सो वी कैन राइट 4 ones are 4. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 6 minus 4 2 एंड ब्रिंग डाउन 0 ones. हम 0 ones को नीचे लिख लेंगे। नाउ डिवाइड 20 by 4. सो 4 5s are 20. 20 minus 20, 0. So your question is 15. And then now question number 7 is 95 divided by 5. So firstly we will divide 9 tens. So it is written as 5 ones are 5, because 5 2s are 10 होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 5 ones are 5 ले लिया। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस 9 minus 5 4, ब्रिंग डाउन 5 ones. 5 ones को हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। नाउ डिवाइड 45 by 5. सो 5 9s are 45. 45 minus 45, 0. So your question is 19. Now divide 8 tens by 3. So 3 2s are 6. Now subtract this 8 minus 6 2, bring down 1 ones. 1 ones को हमने नीचे नोट डाउन कर लिया। नाउ डिवाइड 21 by 3. सो 3 7s are 21. 21 minus 21, 0. Your question is 27. Now question number 11 is 84 divided by 6. So firstly we will divide 8 tens. So it is written as 6 ones are 6. हम 6 ones are 6 ले लेंगे। Now subtract this 8 minus 6 2 and bring down 4 ones. So now divide 24 by 6. 6 4s are 24. Now 24 minus 24, 0. So student, your question number 21 is 5601 divided by 3. So here firstly we will divide 5 thousands. हमें 5 thousands को डिवाइड करना होगा। So हम ले लेंगे 3 ones are 3. Now subtract these 5 minus 3 2, bring down 6 hundreds. Now divide 26 by 3. So
3 8s are 24. Now subtract these. 6 minus 4 2, 2 minus 2 0. Bring down 0 tens. Now we will divide 20 by 3. 3 6 are 18. Now 10 minus 8 2, 1 minus 1 0. Bring down 1 ones. 3 7s are 21. 21 minus 21 0. Okay student, your answer is question is equal to 1867. ओके स्टूडेंट, जब यहाँ पर हमारे 4 डिजिट नंबर आ जाएंगे तो सबसे पहले हम 1000th डिजिट को डिवाइड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड 100th डिजिट को नीचे नोट डाउन कर लेंगे, फिर 1000th एंड 100th डिजिट को साथ में हम डिवाइड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 10th डिजिट को नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम 100th एंड 10th डिजिट को साथ में डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर 1st डिजिट को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ये 1 डिजिट हम नोट डाउन करते जाएंगे और जब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ओके, लास्ट में 0 नहीं आता है, फिर आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन इज इक्वल टू 1867। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज़ 9432 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9 को 9000 को डिवाइड कर लेंगे। तो 8 1 8, 9 माइनस 8 1, 4 नोट डाउन कर लिया। नाउ डिवाइड 14, 8 1 8, 14 माइनस 8 6, 3 नोट डाउन कर लिया। 63 को डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 13 माइनस 6 7, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, फिर 2 नोट डाउन कर लिया। 8 9 72, 72 माइनस 72 0। योर क्वेश्चन इज़ 1179। ओके स्टूडेंट, सबके समझ में आ गया डिवाइड कैसे करते हैं। हमने आपको सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स सारे ही डिवाइड करना बता दिए। आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ओके, नाउ बाय बाय एवरीवन।